Plus 2 class students. Last time we covered the topic purification of colloidal solution. Purification means the colloidal solution usually contains some impurities. So if you want to remove these impurities, then different methods are there like dialysis, electrodialysis, and centrifugation and ultrafiltrations. So all these methods are come under the heading purification of colloidal solution. So purification means removing the impurities from the colloidal solution by dialysis. I explained you last time. After that, electrodialysis, ultrafiltration, and filtration. So now the next topic is properties of colloidal solutions. Properties of colloidal solutions, there are so many properties and extra which are not in your syllabus. Extra properties are also given in this book, but I will explain only those which properties are in our syllabus, because this is modern book, so much extra matter is given in this book. So first is physical properties of colloidal solution. So first physical properties, they are heterogeneous in nature. Two types of solutions are there, homogeneous and heterogeneous, but the colloidal solutions are always heterogeneous. The colloidal solutions are seems to be homogeneous, but actually they are heterogeneous because their particle size is very small. So they seems to be homogeneous, but actually they are heterogeneous. So they are stable in nature. They do not sediment down. नीचे बैठते नहीं है जो पार्टिकल होते हैं कोलोइडल पार्टिकल, जो स्टेबल होते हैं, जो तैरते रहते हैं, मतलब फ्लोट करते रहते हैं डिस्पर्जन मीडियम में. सो इसके बाद आ जाता है हमारे पास मेन टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ. पहला आ जाता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, स्टेबल नेचर. उसके बाद आ जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो कोलाइड सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी ऑलरेडी हैव कवर्ड इन सॉल्यूशन चैप्टर. व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? दोज प्रॉपर्टीज which depend upon the number of particles of solute is called colligative property. So जितने number of solute particle ज़्यादा है उतनी colligative property ज़्यादा है. But in a colloidal solution, maximum time you will see in a colloidal solution that these individual particles, solute particles, they actually their size is small. So if they have to fall in the category of colloidal solution, they have to form aggregate. So maximum time in colloidal solution there is a aggregate formation. So when they form aggregate means they the 10 particles combine and form single particle. So ये single particle बन जाएंगे 10 particle मिलके. लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. if they are individual particles like 10 particles, if they were individual particles, then the colligative property will be higher, because colligative property depends upon the number of solute particles. But if they come together and form a single particle, then number of particle will decrease. If number of particles decrease, then colligative properties will also decrease. So in colloidal solution, actually the colligative properties are less than the ट्रू सोल्यूशन. ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है? ये सिंगल पार्टिकल होते हैं, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन में ये एग्रीगेट फॉर्म कर देते हैं. अगर 10 पार्टिकल ने एग्रीगेट फॉर्म किया तो वो एक पार्टिकल बन जाएगा, तो प्रॉपर्टी एक के हिसाब से होगी. अगर वो अकेले होते 10 पार्टिकल होते तो प्रॉपर्टीज़ भी 10 के हिसाब से होनी थी. सो प्रॉपर्टीज़ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे. उसके साइज़ ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती कि 10 मिल के इसका साइज़ बढ़ गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेंगी तब जब नंबर बढ़ेगा. सो इन colloidal solution colligative property generally lesser, smaller than the true solution. ये आपका पहला. अगला आ गया mechanical properties like Brownian movement. First mechanical property is Brownian movement. What is Brownian movement? कोई भी पार्टिकल है, कौन सा? कोलाइडल पार्टिकल. उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल है, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल है, ये कभी भी फिक्स पोजीशन इनकी रहती. कभी इधर जाएंगे, 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 इधर जाएंगे, ऐसे एक ये जिग जैग मोशन में रहते हैं. कौन? ये जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल है, सोल्यूट पार्टिकल है, दे आर ऑलवेज इन zigzag motion. That zigzag motion is called Brownian movement. What is Brownian movement?
the solute particles या dispersed phase particle of a colloidal solution are always in a zigzag motion and this zigzag motion is called Brownian movement. So ये Brownian movement में रहते हैं कौन, colloidal particles. आगे आगे cause of Brownian movement, क्या कारण है कि ये हमेशा ऐसे movement में रहते हैं, zigzag motion में रहते हैं. What is the reason for that? The reason is ये हमारा मान लो ये हमारे जो क्या है colloidal particles है. सपोज ये क्या हमारे पास colloidal particles है, लेकिन इन colloidal particles में dispersion medium भी होता है, solvent भी होता है. ये तो colloidal particle है लेकिन साथ में कौन से पार्टिकल होते हैं, solvent. ये colloidal particle लेकिन साथ में solvent पार्टिकल होते हैं. तो solvent जो पार्टिकल है, जो solvent पार्टिकल होते हैं, ये solvent पार्टिकल हमेशा इनके साथ आके टकराते रहते हैं. द solvent पार्टिकल, द solvent को बोलते हैं dispersion medium. द dispersion medium particles continuously strike with या continuously collide with द dispersed phase particle means solute particle. जब इसके साथ collide करेंगे तब ये क्या करेगा, मूव करेगा. So the movement, the Brownian movement of the solute particle is because of the collision between the solvent particles with the solute particles, because solvent particles are always in moving, they are always moving. So that's why when they collide with solute particle, then solute particles also become moving and the zigzag motion starts. So Brownian movement means zigzag motion. Reason is कि जो solvent particle है वो टकराते रहते हैं solute के साथ, तो solute को भी मोशन में आना पड़ता है. अगर इधर से टकराएगा तो वो इधर को चला जाएगा, अगर इधर से टकराएगा तो उधर चला जाएगा. तो zigzag मोशन एक अनसर्टेन, एक नॉट ए फिक्स डायरेक्शन में जो मोशन है वो चलता रहता है. इसको बोलते हैं cause of the Brownian movement. After that the new topic is Tyndall effect. So next optical property Tyndall effect. जो colloidal particles हैं they show Tyndall effect. What is Tyndall effect? Tyndall effect क्या होता है कि जब इस colloidal solution में, किसमें, इस colloidal solution में जब हम लाइट पास करते हैं, ये लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, ये पास करा रहे हैं पहले ट्रू सोल्यूशन में फिर colloidal solution में. ट्रू सोल्यूशन में कुछ नहीं होता. When it pass through colloidal solution, the path of the light become visible. What is Tyndall effect? When light is passed through which solution? Colloidal solution. When light is passed through colloidal solution, then the path of the light become visible. That is called a Tyndall effect. And what is the cause of Tyndall effect? The cause of Tyndall effect, again they have explained कि why the path of the light become visible. It is because of the scattering of light. ये जो लाइट जब आती है वो क्या करती है, स्कैटर करती है. किसके साथ, colloidal पार्टिकल के साथ. तो जब ये लाइट ऐसे आ रही है तो इस जब colloidal, क्योंकि colloidal solution में colloidal पार्टिकल होते हैं, तो colloidal पार्टिकल से टकराती है तो ऐसे स्कैटर करती है, ऐसे स्कैटर करेगी. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से उसका पाथ है वो विजिबल हो जाता है. ये आपने बताना है. व्हाट इज Tyndall effect? द पाथ ऑफ द लाइट पास्ट become visible when it pass through a colloidal solution. That is called Tyndall effect. And what is the reason? The reason of the Tyndall effect is scattering of light. Scattering, ये जो मॉलिक्यूल होता है सोल्यूट का, कह लो डिस्पर्स पे, उसके पास जाके जो लाइट क्या करती है, स्कैटर करती है. तो बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल व्हेन इट पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन. सो इसको बोलते हैं Tyndall effect. Tyndall effect का एक दो कंडीशंस होनी जरूरी है. अगर इफ़ Tyndall effect इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर देयर. कुछ कंडीशंस होती है तभी Tyndall effect होता है किसी सोल्यूशन में, अदरवाइज नहीं होता. वो क्या है, पहली कंडीशन है द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ. जो वो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल है, जो सोल्यूट पार्टिकल है, उसका जो डायमीटर है वो जो वेवलेंथ है लाइट की उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए. जो डायमीटर है किसका, सोल्यूट पार्टिकल का, ये ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, मतलब इसके थोड़े आसपास ही होना चाहिए. किसके, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जो लाइट पास करा रहे हैं इसकी जो वेवलेंथ है उससे. ये पहली कंडीशन है. एंड द सेकंड कंडीशन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम डिफर लार्जली इन मैग्नीट्यूड. जो अब बात आ गई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की, जो इसको रिफ्रैक्टिव इंडिसेस भी बोलते हैं. जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस है किसका, डिस्पर्स्ड फेज का और डिस्पर्जन मीडियम का, ये थोड़ा सा
डिफरेंट होना चाहिए, इन दोनों में आपस में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। ये दे शुड डिफर लार्जली इन मैग्नीट्यूड, ये आपको होना चाहिए। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक आ जाता है वो मेनली है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। कलर भी होता है, कलर भी देते हैं जो कोलाइडल सोल्यूशन है, कलर देते हैं, लेकिन कई ऐसे कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं उसके एंगल पे डिपेंड करता है, किस एंगल से आपको देख रहे हो उस वैसा उसका कलर होता है। ज़्यादातर कलर डिपेंड करता है जो कौन सी लाइट उस पर फॉल हो रही है, किस वेवलेंथ की लाइट फॉल हो रही है, और एंगल किससे हम देख रहे हैं, ऑन दैट द कलर विल डिपेंड। सिंपल सा टॉपिक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको मैं अगर आपको ब्रीफली बताऊं, इसमें यही है कि द कोलाइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी सम चार्ज, आइदर दे कैरी पॉजिटिव चार्ज और दे कैरी नेगेटिव चार्ज। सो दिस whole topic is what is it is saying that all the colloidal particle, all the solute particles हम always carry charge, either positive or negative. Some colloidal solution carry positive charge on each solute particle, and some colloidal solution carry negative charge on each particle. So this is the main point in this, and I will explain you why some are positively charged colloidal solution, why some are negatively charged colloidal solution. I will explain you in the next video, but now I want to tell you that some colloidal particles carry positive charge, वो दे रखी है एग्जांपल्स, सम कैरी नेगेटिव चार्ज, उनकी एग्जांपल दे रखी है, ये आपने याद कर लेनी है। और इसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। मान लो कोलाइडल पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। सपोज कोलाइडल पार्टिकल पे नेगेटिव है, कोलाइडल सोल्यूशन के जो कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव कहाँ जाएंगे, नेगेटिव जाएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। तो जब पॉजिटिव जाएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, चार्ज इनका जीरो, इनका चार्ज यहाँ जाके जीरो हो जाएगा। जब चार्ज जीरो हो जाएगा तब इनमें कोई रिपल्शन नहीं रहेगा, तब ये क्या है, जुड़ जाएंगे आपस में, क्या कर देंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देंगे। मैं एक बात और बता दूं आपको, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं इन पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या तो नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज है मान लो इस कोलाइडल सोल्यूशन पे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों होता है, क्योंकि अगर इस पर कोई चार्ज है तभी इनमें दोनों पार्टिकल में आपस में क्या होगी, थोड़ी सी रिपल्शन होगी, बिकॉज पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर। जब रिपल्शन होगी तो ये जुड़ेंगे नहीं, आपस में जुड़ेंगे नहीं तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, ये कोलाइडल पार्टिकल रहेंगे। बट अगर इसको